Yes, good morning, everyone. Today, 28th of July, 2021, going to start further explanation for the chapter that is inside our earth. हमारे धरती के अंदर क्या? As the introductory part we have done yesterday, are changing earth. हमारी अर्थ जो है वो किस तरह से चेंज होती रहती है, हमारी अर्थ में जो है वो किस तरह से चेंजेस जो है वो आते रहते हैं. So in this chapter, as I had discussed that Earth is always or continue in the changing way. हमारी धरती जो है वो हमेशा ही changing phases में रहती है. It is the continue process, comprehensive process which we cannot see in our lifespan, but next generation can see that lifespan. Earth movements are of two types. अर्थ की जो मूवमेंट है वो टू टाइप्स की होती है. कौन सी होती है? एंडो एंड Exogenic. यस, वेरी गुड. आयुष, स्विच ऑन योर कैमरा. एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक, दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं. एंडोजेनिक मूवमेंट्स आर विद इन द अर्थ सरफेस. एंडोजेनिक मूवमेंट्स होती है वो कहां होती है? विद इन द अर्थ सरफेस. हमारी अर्थ की लेयर्स है, these are the layers. और एंडोजेनिक मूवमेंट्स जो है वो विद इन द लेयर्स. इन लेयर्स में है that is called endogenic process because the molten magma come out from the weak vent. Weak vent क्या होता है? हरगुन, what is that called? Weak vent of the earth's surface through which molten magma comes out. Volcano. Yes, it is volcano. Very good. So what is volcano? It is the opening vent which is being, you can say, crushed, cracked, or we can say opening vent or the weak vent through which the molten magma through the interior of the earth come out because of the heat and pressure. And molten magma erupt suddenly through that vent, that is called volcano. ठीक है, यहाँ ऐसे बाहर हो. ठीक है, so that make the volcano. यहाँ तक मैंने करवाया था. Two words, endo and exo. Genic word means origin. Endo means inside, exo means outside. Endo means inside, and exo means Outside. outside. Or genic means Origin. Genic Origin. origin. ठीक है, so origin that is called endogenic and exogenic. ठीक है, so in this way we come to know about the two factors which are responsible for land formation. हम लोग land formation is done due to these two factors. ठीक है, यहाँ तक हमने कल करवाया था. So Krish was asking for the activity which is being given on the yellow green box on the right hand side. So this is the activity. Suppose you are putting a pan of water on the gas and put a lid on it. उसके ऊपर आप lid रख दो और lid के ऊपर थोड़े से beads रख दो, अपने माला के मोती रख दो, थोड़े से पीस रख दो, मटर रख दो, या एक आधा कोई चम्मच हल्का सा वो रख दो. तो अगर वाटर नीचे से बॉयल होगा तो वो प्लेट जो ऊपर हमने लिड रखा हुआ है, दैट लिड विल बी गोइंग टू शेक. और वो शेक के कारण आपके बीड्स जो है वो भी क्या होंगे? हिलने स्टार्ट हो जाएंगे. पीस जो है, हमने मटर जो रखे हैं वो भी हिलने स्टार्ट हो जाएंगे. एंड द स्पून विच वी केप्ट ओवर दैट लिड, that will be also vibrate because in that pan water is start boiling. That is what
heat and pressure exert from the base led to movement and vibration on the surface of that bowl, we can say. और यहाँ एक कांच का बीकर ले ले, कांच का जार ले लो, जार को आप नीचे से हीट करें पानी बॉयल करके, और ऊपर अगर आप उसके नीचे से बॉयल करता रहे, लेड लगाएंगे तो दैट लेड विल आल्सो डू दीज काइंड्स ऑफ शेक और वाइब्रेशन. दैट शेक्स और वाइब्रेशन if it is being done on the surface of a earth, that is called earthquake. हमें पता earthquake कभी फील किया है आपने? earthquake अपनी लाइफ में earthquake फील किया है? Have you ever experienced of earthquake? Anyone? Yes, ma'am. किया हुआ है? आपने फील किया होगा, बेड पूरा का पूरा आपका शेक किया होगा, फैन पूरा का पूरा हिला होगा, doors and windows were also shocking. So yes, okay, very fine. So in this way, when the earthquake is there, that is you can say due to the shaking of the interior endogenic forces. जो endogenic forces है के अंदर मॉल्टन मैग्मा के कारण जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, तो अपर लेयर जैसे टिन हमारे पैन के ऊपर की जो लिड है वो शेक करेगी. चाय के ऊपर कभी प्लेट रख के देखना, चाय उबल रही हो तो वो प्लेट जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देती है बिकॉज ऑफ द व्हेन द टी गेट स्टार्ट बॉइलिंग. तो वो आपने लिड का भी देखा हो तो लिड हिलना स्टार्ट कर देती है. इन द सेम वे व्हेन द मॉल्टन मैग्मा पुट द प्रेशर और व्हेन द प्लेट्स जो है हमारे इंटीरियर ऑफ अर्थ में बहुत सारी रॉक्स की प्लेट्स हैं इंटरनल ही, वो प्लेट्स जब शेकिंग करती हैं, फॉल्टिंग एंड फॉनिंग करती हैं, फॉल्टिंग करती हैं, फोल्ड होती हैं आपस में जब, तो वो उस एरिया में और रेंजेस आती हैं, वेव्स आती हैं, तो वो जो वेव्स हमारे ऊपर अटैक करती हैं, तो वाइब्रेशंस जो है वो धरती की सरफेस पे होता है, दैट इज अर्थ. सो सिमिलरली लिथोस्फीयर प्लेट्स मूव. अब देखो जैसे लिथोस्फीयर प्लेट्स मूव करती हैं वैसे के वैसे ही the surface of the earth vibrate. As I had given you example as on the tea pan, if you covering it with the lid will start vibrating on the same way when the heat and pressure exert on the interior of our earth, then the surface of the earth vibrates. Same, and the vibration can travel all around the earth. इसकी एग्जाम्पल देते हो. आप एक बकेट में पानी लो और उसके नीचे से हल्का से बकेट को आराम से पड़ियो, नीचे से हल्का सा शेक करो, उसकी वेव्स जो है वो ट्रैवल करके सेंटर से साइड्स पे जाएंगे. होगा या नहीं होगा? Same the way when the interior earth will get shake, when the interior, आप suppose अपना ग्लास पानी का वो नीचे से ऐसे डालो, उसके वेव्स ऊपर से ऐसे जाएंगे. ठीक है, जाएंगी. अगर बड़ा वाला बाउल लेते हो, आप एक बड़ा वाला पैन ले लेते हो या पतीला घर पे पूरा स्टील का एक ले लेते हो, तो उसको जैसे ही आप अगर जोर से रखते हो अपने शेल्फ के ऊपर, तो वो हल्का सा वाइब्रेट करके उसके अंदर जो भी वाटर कंटेंट या कुछ भी पड़ा हो ऐसे वाइब्रेट होता है. Have you ever observed that kind of thing? Yes, ma'am. Same the way when earth get vibration, when the earth interior plates get movement, when the lithospheric plates get movement, then the upper surface of the earth, यानी कि crust of the earth, that vibrates, वो vibrate होती है. And that vibrate not only at one place, it moves at all the sphere, वो चारों साइड से होती है. ऑब्जर्व किया हुआ है जैसे पानी होता है सेम. ठीक है, so the vibration can travel all around the earth and these vibrations are called earth. When the land earthquake, वो earthquake कहलाता है. When the lithospheric plates moves, it create vibration.
vibration on the surface of the earth and it moves all around, that is called earthquake. If it is clear, clear है बेटा जी? कोई Yes, डाउट है ma'am. यहाँ तक? Excuse me. Yes, ma'am. No, ma'am. क्लियर है? No, ma'am. नेक्स्ट Excuse द me, प्लेस, ma'am. हाँ जी बोलो बेटा। मैम जो वाइब्रेशन होती है वो जैसे अर्थक्वेक की वाइब्रेशन है वो उसके एपिक सेंटर या फोकस से दूर क्यों जाती है? मैं बता रही हूँ, अगले पॉइंट पे आ रही हूँ, आ रही। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट, हमें ये पता लग गया कि अर्थक्वेक क्या है। When the interior of the landforms are plates get start moving, then it create the vibration on the earth's surface and that is called earth. These plates in the crust where the movement starts are called focus. जहां पर ये स्टार्ट होती हैं, जिस एरिया में ये स्टार्ट होती हैं, जैसे एक सेंटर में आपने देखा होगा, अगर आप अपना बाउल कंटेनर जिसमें वाटर भरा है, अगर आप उसको जोर से किचन के शेल्फ में या कहीं पर भी रखते हैं, डाइनिंग पे रखते हैं, तो वो वाइब्रेट सेंटर से टच हुआ, सेंटर से वाइब्रेट, वो जो सेंटर आया दैट इज कॉल्ड फोकस. That is called focus and the place on the above of that is called focus. नीचे बना और उसको ऊपर बना, पानी जितना लेवल है उसको ऊपर बना एपिसेंटर. Same the case on the earth. नीचे जहां पर मेन वाइब्रेशन हुआ that is called focus. मेन जो जहां से मूवमेंट स्टार्ट हुआ पॉइंट that is called focus. और वो जो ऊपर टॉप तक गया, टॉप का एरिया जो उसके बिल्कुल टॉप का एरिया है, that will be called as epicenter. और उस एपिसेंटर से वेव्स जो है वो मूव करती हैं. You can do this thing with help of one container taking from your kitchen and fill it half. You have to fill half से थोड़ा सा ज्यादा. You can fill it with the water और उसको बिल्कुल टिका के एक जगह से दूसरी जगह से थोड़ा सा जोर से रखिए और आपको सेंटर में वो टच करेगा नीचे. दैट विल बी कॉल्ड फोकस. नीचे से जर्क लगा, उसको फोकस हुआ, उसका ऊपर एपिसेंटर बना और एपिसेंटर से वेव्स जो है वो जानी स्टार्ट की. इज नाउ कृषभ एपिसेंटर इज क्लियर. नेक्स्ट आ जाता है वाइब्रेशन ट्रेवल फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स. मैम जैसे एपिसेंटर बना, वहां से वाइब्रेशन वेव्स की फॉर्म में जाना शुरू हो जाती है थ्रू ऑल द डायरेक्शन, सारे डायरेक्शंस में, चारों डायरेक्शंस में. सो इन दैट वे वाइब्रेशन ट्रैवल आउटवर्ड, इनवर्ड नहीं आती, आउटवर्ड जाती, बाहर को जाती है. एंड ग्रेटेस्ट डैमेज इज बीइंग डन नियर द एपिसेंटर. जहां एपिसेंटर होता है वहां अर्थक्वेक की जो रिएक्टर स्केल पर, रिचर्ड स्केल पर हम मेजर करते हैं, वहां स्पीड ज्यादा होती है. और आपने फील भी किया होगा, जहां पानी हिलता है वहां पानी का उछाल ज्यादा, तो उसके बाद धीरे 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 प्लेयर्स जो है वो डाउन हो जाते हैं. सेम द केस इन द अर्थक्वेक. एपिसेंटर पे जो उसकी डेंसिटी है, उसकी जो स्पीड है वो ज्यादा होती है and usually closer to the epicenter and strength of earthquake decreases away from the center. So next हमारा जो आता है, मतलब इस तरह से you can see it on a picture which is being given. Focus means interior of the earth, जहां से earthquake का vibration start हुआ, maybe यहाँ से start हुआ, maybe यहाँ से start हुआ, जहां से वो आ गया आपका फोकस. फोकस के बाद सीधा ट्रैवल करता जा रहा है, सीधा ट्रैवल करता जा रहा है और यहाँ पर बन गया एपिसेंटर. ठीक है, सपोज मैं 2 पॉइंट बना रही हूँ एंड व्हेन द मूवमेंट ऑफ द एपिसेंटर on the side, as it will move away from that place, that will be having less earthquake effect. कोई doubt? Any doubt? मैम अर्थक्वेक टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के कारण ही होता है. बिल्कुल होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स मैम- की मूवमेंट के कारण ही होता है. या मैम अंडर वाटर वोल्केनिक इरप्शन वो भी होती है, वो भी होती है, डिपेंड करता है, वो भी होती है. ओके मैम. सो नेक्स्ट देखिए, डू यू नो में देखिए, देयर आर बेसिकली
three types of earthquake waves. There are basically three types of earthquake waves that are called P wave, S wave and L wave. अब देखो अर्थ वेव्स जो है, ये अर्थक्वेक की जो वेव्स है अर्थक्वेक की, दे आर ऑफ थ्री टाइप, P wave, S wave and L. P waves जो है, if you can see that waves are longitudinal waves. Do you know what is longitude? मैंने करवाया हुआ है. लॉन्गिट्यूड इफेक्ट क्या होता है? Yes. क्या होता है? Vertical. वर्टिकल. यस, P waves वर्टिकल, सीधी या ऊपर जाएगी या नीचे इंटीरियर से सीधा ऊपर गई. मैंने यहाँ बनाई थी. तो ये जो सीधी ऊपर गई, दैट इज कॉल्ड P wave. लॉन्गिट्यूडनल, सीधा इफेक्ट ऊपर पड़ा. ठीक है. उसके बाद एस वेव जो है ट्रांजिशनल है, फैल से जा रही है, ट्रांजिशनल ऐसे से जा रही है. ठीक है. इंटीरियर वेव एस इज मतलब वेव की फॉर्म में. वो लॉन्गिट्यूडनल पी वेव्स मींस सीधी जाती है और एस वेव मींस वहीं पर फैलना शुरू हो जाती है. टेक्टोनिक प्लेट्स वहीं पर ही फैलना शुरू हो जाती है. एंड देन इज एल वेव ऑन द सरफेस. एल वेव सरफेस पे जाके होती है, जो मैंने आपको बताई है अभी वाटर की मूवमेंट के साथ समझाई है. दैट आर कॉल्ड सरफेस वेव्स. एस वेव मींस सरफेस वेव्स. yes. So P wave are the direct straight waves. S waves are, you can say, that waves which trans waves और मूवमेंट करती हुई इंटरनल से जाती है. एंड सरफेस वेव्स जो है, एल वेव्स जो है, दैट आर कॉल्ड सरफेस वेव्स. एल वेव्स आर कॉल्ड लैंड वेव्स और सरफेस वेव्स. सरफेस वेव्स. कोई डाउट यहाँ तक बेटा जी? किसी को भी कोई डाउट होगा प्लीज. ट्रांसवर्स वेव होती है, वो मूव करती हुई ऊपर जाती है. हाँ और मैम बाकी फिर ऊपर जाके अपना रिएक्शन देती हैं. बिल्कुल बिल्कुल. मैम फिर क्योंकि मैम फिर एक मेरी चीज एक बताओ. हम लोग ग्लास टूटता है या कोई भी क्रॉकरी टूटती है, हम चाहे 2 तोड़े या 100 तोड़े, क्या वो एक जैसे टूटेंगे? मैम ना, अलग अलग पार्ट अलग अलग. टूटेगा. चाहे वो 100 टाइम हम प्लेट एक ही तरह गिराएं, लेकिन वो प्लेट एक तरह से नहीं टूटेगी, वो ग्लास एक तरह से नहीं टूटेगा. सेम द थिंग वी कैन से इट ऑन द earthquake, क्योंकि इट्स अ नेचुरल प्रोसेस. It's the natural process in which we can't say twice the things will happen identical. Same हो नहीं कह सकते हम तो किसी भी वे में. बट जर्नल कंसाइज फॉर्म में हमने इनको बनाया हुआ है कि देयर आर जर्नली वी कैन से 3 टाइप्स ऑफ वेव्स आर देयर. P waves are longitudinal waves, longitude waves होती है. S waves are, you can say, transversal, जो इंटरनल इंटीरियर के अंदर ही ट्रांसफॉर्म होने के कारण वेव्स बनती है. एंड L waves are called land waves और surface waves, जो यहाँ पर अपर सरफेस में होती है. But one wave from the other, we can say, experience of one earthquake with the other earthquake, it cannot be same. It cannot be same. There will be a difference. ठीक है. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, वो अंडरग्राउंड ही अपना सारा अपना नहीं क्या बेटा, कहते वो हैं. बाहर भी आ सकती है. मैंने कहा ना, ये होती है डायरेक्ट वेव्स. You can see it on page number 3.3, figure number 3.3 as focus, epicenter and plate boundary जो है उसकी मूवमेंट किस हिसाब से होती है, that differ from time to time. अब सपोज हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, अभी कुछ हो जाए हमें पता लगेगा नहीं, और इस चीज की खबर हमें नहीं लगती. बट there are some facts which are showing that we can come to know that the earthquake will be coming soon. वो factors क्या हैं? Number 1, in the pond or in the rivers or in the aquatic life, all the fish are getting irritated.
ये एक सिम्टम्स है, ये एक सिंबल है which is showing that sooner earthquake will be going to come. उनको जैसे आवाज, उनको जैसे वाइब्रेशंस पहले आनी स्टार्ट हो जाती. Second things, we know all the snakes are living within the earth. धरती के अंदर रहते हैं ना स्नेक्स, होल बना के अंदर रहते हैं ना. Yes, Before commencement of the earthquake, all the insects, all the snakes are coming on the floor. These are the matlab you can say symbols, or we can say the things which can help us that now or sooner the earthquake or the natural calamity can come in the form of tectonic movement. कोई doubt? मैम मैंने भी एक जगह पे सुना था कि जापान में जो एक बहुत 8.2 मैग्नीट्यूड का जब आया था अर्थक्वेक, तो वहां पे भी जो एनिमल्स थे वो सिटी छोड़ के जा रहे थे. हाँ जी, this is what animals have a sixth sense जो human bodies में नहीं है. Animal has sixth sense, उनको पता लगना शुरू हो जाता है. They get irritated and they get frustrated and they start moving here and there. Even cats and dogs are also feeling the same thing. So fish, snake, cat, dog, ये factors हैं जो हमें थोड़ा बहुत indicate कर देते हैं कि yes, now the things will be going to do something destructive. Beta ji, I had shared Google Form with you. Please fill the attendance. Abdul, your voice is not at all audible. Disturbance is there from your side. Please mute yourself. हाँ बोलो. मैम मुझे पी वेव्स और एस वेव्स में समझ नहीं आई. बेटा जी, पी वेव्स होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो कि सीधी डायरेक्ट जाती हैं सीधा. मैंने अभी आपको एक वाटर कंटेनर की एग्जांपल घर पे दी है, वो आप रख के देखो. वाटर पानी भरो उस कंटेनर में, और कंटेनर में व्हेन यू विल बी गोइंग टू पुट इट ऑन द लैंड, मतलब सरफेस, शेल्फ पे, टेबल पे, कहीं पर भी रखोगे तो एक वेव सीधी निकलेगी. वो वेव जो सीधी निकली दैट इज पी वेव. Or when they start moving within the subsurface, that is called transitional wave. That is called you can say S waves, and L waves are surface waves. Some students were waiting for the attendance only. So I hope up to this is very much clear. Dhruv, is it Excuse me, ma'am. मैम एस वेव्स कौन सी होती है? एस वेव जो होती है वो विद इन द अर्थ टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट के कारण अर्थ के अंदर जो वाइब्रेशंस होती हैं, अर्थ के अंदर जो ट्रांजिशन होती है, दैट आर कॉल्ड ट्रांजिशनल. ठीक है. Excuse me, ma'am. जी ध्रुव. मैम ये जो 3 टाइप्स ऑफ वेव्स है मैम, ये हर एक अर्थक्वेक में आती हैं? कोई ना कोई होती है. मैंने अभी बताया ना, अभी आपको एग्जांपल दी कि हम चाहे 100 ग्लास तोड़ दें या 200 प्लेट तोड़ दें, one plate will not be identically broken with the another one. सेम तो नहीं टूटेगी ना. सेम द केस अर्थक्वेक जो है किसी भी डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में आ सकते हैं, बट कंसाइजली हम लोगों ने 3 टाइप्स ऑफ वेव्स हैं, पी वेव, एस वेव एंड एल वेव. पी मींस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेट वेव्स आती हैं नीचे से इंटीरियर ऑफ लैंडफॉर्म जो प्लेट्स मूवमेंट करती हैं. एस वेव्स इंटीरियर ही मूवमेंट एस की फॉर्म में मींस वहीं पर ही एक्सपैंड करना शुरू कर देती है. एल मींस लैंड सरफेस वेव्स जो ऊपर आकर ट्रांसफॉर्म करती है एंड एक्सपेंडेड फ्रॉम द एपिसेंटर टू द अदर साइड, बट द फोर्सेस or the effect of that waves are decreasing as it moves toward the other side, far from that epicenter. Yes, the point is clear up to this. So we had experience of one earthquake in India that was done on 26th of January 2001. 2001 जनवरी 26 को एक बहुत बड़ा जो अर्थक्वेक आया था इंडिया के अंदर, गुजरात में, भुज में. So Bhuj was the epicenter at that time, which was considered to be as a destructive at that time and caused lots of casualties, lot of destruction. Even one school, one program, क्योंकि 26th of Jan था तो उस दिन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हो रहा था. It was 8 AM
8 a.m. to 8:11 a.m. का time था. So at that time, school students were also participating in the Republic Day function, and the teachers were also get affected with that. और उस period में in the cities, fires were also there. All the pipes, water pipes were also get destructed. All the electricity wires were also get destructed. Even fires at number of places were there. ये सब कुछ फटाफट होना शुरू हो गया. And water from the ocean side, मतलब जो river sides और यहाँ पर भी था, उसने भी destruction करनी start कर दी. And due to that reason, president at that time declare in that state emergency, and the CM of that state was also demanding funds from the central government at that time. So earthquake किसी भी form में कहीं पर भी हो सकता है. Is it okay? So this is the example or experience by the Indian people in 2001. और जिसका epicenter 6 और Richter scale पर जिसकी जो density थी, जिसका जो measure था earthquake का, that was 6.9. Is it okay? I hope up to this is clear. So tomorrow we will continue.